हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो 10th क्लास की जो बुक है सप्लीमेंट्री यानी कि द फुटप्रिंट्स विदाउट फिट, इसका जो चैप्टर है नेकलेस वो करेंगे आज। द नेकलेस जो है द स्टोरी अबाउट मटिल्डा। मटिल्डा इज द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी एंड मटिल्डा takes birth in a poor family, the family of a clerks, and her parents were not able to give dowry for her marriage. That's why she got married with a clerk, and that's why uh, she was not able to enjoy all the pleasures of life, and she used to think and dream of luxurious life, grand parties, but she was not able to enjoy her life the way she wanted and she had dreamt about. In this way, after her marriage, Matilda remains unhappy with her life, and she often thinks of the life where she could enjoy all these pleasures. And ultimately, Matilda's husband, Mr. Loisel, got an invitation for a dance party. That party was organized by the Ministry of Education, and in that party only selected guests were invited, and Matilda's husband was very happy, and he was in the impression that Matilda would be very happy to see the invitation, but all his happiness was shattered when he came to know that Matilda was annoyed and Matilda was not happy at all. She threw the invitation saying that it was good for nothing, it was of no use for her because she didn't have good dress to wear at the party, and will study after that what happens when she borrows a diamond necklace from her friend Ma'am Forestier, and after that her life changes completely. So what happens to her will study in this chapter. Okay, so let's begin. The necklace. Matilda is invited to a grand party. She has a beautiful dress but no jewelry. She borrows a necklace from a friend and loses it. What happens then? Okay, so what happens then? उसके बाद में क्या होता है? मटिल्डा ग्रैंड पार्टी में इनवाइट किया जाता है, उसकी ब्यूटीफुल ड्रेस है लेकिन ज्वेलरी नहीं है उसके पास में। अब नेकलेस अपने फ्रेंड से बोरो करती है और इसे गुम कर देती है, तो उसके बाद उसके साथ क्या होता है तो देखिए। She was one of those pretty young ladies born as if through an error of destiny into a family of clerks. वह उन सुंदर नौजवान लेडीज़ में एक थी जो कि भाग्य की गलती से एक क्लर्क्स की फैमिली में उसका जन्म हुआ। She had no dowry, no hopes, no means of becoming known, loved and married by a man either rich or distinguished, and she allowed herself to marry a petty clerk in the office of the Board of Education. Mean to say, Matilda was born in a poor family, and she didn't have dowry, hopes, means of becoming popular, loved, and मीन टू से कोई होप नहीं थी, कोई तरीका नहीं था, कोई सोर्स नहीं था कि उसकी शादी किसी अमीर या किसी जान पहचान वाले डिस्टिंग्विश का मतलब होता है एक पर्टिकुलर फेमस पर्सन से उसकी शादी होगी, इसलिए उसकी शादी एक छोटा मोटा पैटी का मतलब होता है एक बहुत ही इनसिग्निफिकेंट या छोटी जॉब वाला व्यक्ति मान लो, उसके एक क्लर्क था उसके साथ उसकी शादी होती है जो कि बोर्ड ऑफ एजुकेशन के अंदर क्लर्क था। शी वॉज सिंपल बट शी वॉज अनहैप्पी। सिंपल रहती थी लेकिन वो अनहैप्पी थी। शी सफ़र्ड इंसेसेंटली। इंसेसेंटली मीन्स कंटिन्यूसली वो सफ़र करती थी। फीलिंग हर सेल्फ बोर्न फॉर ऑल डेलिकेसीज एंड लग्जरीज। वो ऐसा फील करती थी कि उसका जो बर्थ हुआ है, जन्म हुआ है, वो सभी प्रकार की जो
पकवान हैं, जो लग्जरियस लाइफ है उसके साथ उसके लिए हुआ है। शी सफर्ड फ्रॉम द पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट, the shabby walls and the worn chairs, all these things tortured and angered her. वह अपने अपार्टमेंट की जो पॉवर्टी जो थी, जो खस्ता हालत थी, उससे बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। एंड द शेबी वॉल्स, जो भद्दी वॉल थी, अगली वॉल्स थी, और जो घिसी पुरानी जो चेयर्स थी, उनकी हालत से बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। ये सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा टॉर्चर करती थी, उसे गुस्सा दिलाती थी। When she seated herself for dinner opposite her husband, who uncovered the tureen with a delighted air, saying, "Oh, the good pot pie! I know nothing better than that." She would think of elegant dinners. When she seated herself for dinner opposite her husband, who uncovered the tureen with a delighted air, saying, "Oh, the good pot pie." जब वो अपने हस्बैंड के अपोजिट, यानी कि अपने हस्बैंड के सामने मेज़ के ऊपर बैठती थी, टेबल के ऊपर, जो कि ट्यूरिन का मतलब होता है एक डिश होती है जो कि मीट वगैरह से या वेजिटेबल से धीमी आंच पे पका करके जो बनाते हैं, दैट इज़ ट्यूरिन। वो उस ट्यूरिन को उसने अनकवर करता था उसका हस्बैंड, और विद ए डिलाइटेड एयर, और खुशी के मारे कहता था, यानी कि डिलाइटेड एयर का मन होता है एक तरीके से प्रेजिंग सेंस में बोलता था, ओ द गुड पोट पाई, कितनी अच्छी पोट पाई है। ये जो है पोट पाई मीन्स होता है पेस्ट्री ओपन फिल्ड विद वेजिटेबल्स और मीट। आई नो नथिंग बेटर दैन दैट, शी वुड थिंक ऑफ एलिगेंट डिनर्स। मुझे इससे बढ़िया तो समझ में नहीं आता। इट मीन्स वो अपने उसको बहुत ज़्यादा बड़ाई करता था, प्रेज करता था, ब्रैग करता था। शी वुड थिंक ऑफ एलिगेंट डिनर्स of shining silver. She thought of the exquisite food served in marvelous dishes. लेकिन उसकी जो वाइफ थी मटिल्डा, वो अक्सर उन आलीशान, उन भव्य, एलिगेंट का मतलब होता है भव्य, ठीक है, मैग्निफिसेंट डिनर्स के बारे में सोचा करते थे, जिसमें चमकदार चांदी के बर्तन थे, और उन लजीज भोजन के बारे में सोचा करती थी जो कि मार्वल्स डिशेस के अंदर बहुत बेहतरीन आलिशान बर्तनों के अंदर जिसको परोसा जाता था। शी हैड नीदर फ्रॉक्स नॉर ज्वेल्स, उसके पास न फ्रॉक्स थे न ज्वेल्स अच्छे थे, नथिंग, कुछ नहीं। एंड शी लव्ड ओनली दोज थिंग्स, और उसे एकमात्र वो ही जो थिंग्स थी बहुत ज़्यादा पसंद थी, बहुत ज़्यादा उसे अच्छे लगते थे। शी हैड अ रिच फ्रेंड, अ स्कूल मेट एट द कॉन्वेंट, who she did not like to visit. She suffered so much when she returned. मटिल्डा की एक फ्रेंड थी जो काफ़ी रिच थी, और उसकी स्कूल मेट थी कॉन्वेंट स्कूल के दौरान, जिसको पास वो जाना पसंद नहीं करती थी, क्योंकि जब वो उसके पास वो विजिट करके आती थी तो उसे बहुत ज़्यादा दुख होता था, पेन होता था। शी wept for whole days from despair and disappointment. वह सारा दिन निराशा से और हताशा से रोती रहती थी। One evening, her husband returned elated, bearing in his hand a large envelope. एक इवनिंग उसका जो हस्बैंड है वो काफ़ी इलेटेड का मतलब ही वॉज इन द एयर, और वी कैन से ही वॉज वेरी हैप्पी, ही वॉज वेरी प्राउड, होल्डिंग इन हिज हैंड अ लार्ज एनवेलप, उसके हाथ में एक बड़ा सा लिफाफा था। हेयर ही सैड, हेयर इज़ समथिंग फॉर यू, देखो यहाँ पर कुछ तुम्हारे लिए मैं लेके आया हूँ। She quickly drew out a printed card on which were inscribed these words, और उसने जल्दी से ड्रू आउट एक प्रिंटेड कार्ड उसने निकाला लिफाफे में से, जिस पर ये वर्ड्स जो थे इंस्क्राइब थे, छपे हुए थे, प्रिंटेड थे। और कौन से वर्ड हैं ये? द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मैम जॉर्ज रोम्पिन्यू आस्क्स द ऑनर ऑफ मैम एंड मैम लॉयसल्स कंपनी मंडे इवनिंग January 18 एट द मिनिस्टर्स रेजिडेंस। ये वर्ड्स उसमें लिखे हुए थे उस एनवेल्प के ऊपर। उसमें जो कार्ड निकाला उसमें इनविटेशन कार्ड के ऊपर लिखा हुआ था ये कि ये मैम मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन की तरफ से
एंड मैम जॉर्ज रोम्पिनो की तरफ से, जो कि मैम लॉइसल्स एंड मिस्टर मिसेस लॉइसल थे, उनको इनवाइट किया जाता है और उनके रेजिडेंस के ऊपर. इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड एज हर हस्बैंड हैड होप्ड, शी थ्रू द इनविटेशन spitefully upon the table, murmuring, "What do you suppose I want with that?" और खुश होने के बजाय, डिलाइटेड मीन्स हैप्पी होने के बजाय, वो जो मटिल्डा थी, वो जैसा कि उसके हस्बैंड ने सोचा था, आशा की थी कि वो बहुत ज़्यादा खुश होगी, उसने इनविटेशन को गुस्से से टेबल के ऊपर फेंक दिया और बड़बड़ाने लगी, तुम इससे क्या मानते हो कि मैं इसका क्या करूँ इसका मैं, व्हाट शुड आई डू विद दिस इनविटेशन. But my dear, I thought it would make you happy. You never go out, and this is an occasion, and a fine one. Everybody wishes one, and it is very select. Not many are given to employees. You will see the whole official world there. लेकिन वो अपनी वाइफ से कहता है, मटिल्डा का हस्बैंड, कि सुनो प्रिय, मैंने सोचा था कि इससे तुम बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगी, और क्योंकि तुम कभी बाहर नहीं जाती हो और ये ओकेज़न है बहुत ही अच्छा है, हर कोई इस ऐसे ओकेज़न की जो है विश करता है, और ये बहुत ही चुनिंदा लोगों को इसमें एम्प्लॉइज़ को दिया गया है, ज़्यादा लोगों को नहीं मिला ये, और वहाँ पर सारा ऑफिशियल वर्ल्ड तुम्हें वहाँ पर मिलेगा. शी लुक्ड एट हिम with an irritated eye and declared impatiently, "What do you suppose I have to wear to such a thing as that?" तो उसने बड़े ही चिढ़ती हुई नज़र से, चिढ़ते हुए उसने गुस्से से अपने अपने पति की तरफ देखा, ऊपर देखा, और गुस्से से कहा कि मैं क्या पहनूं ऐसी पार्टी के अंदर, पहनने के लिए है क्या मेरे पास में. He had not thought of that. उसने इसके बारे में सोचा नहीं था. He stammered, "Why the dress you wear when we go out to the theater? It seems very pretty to me." तो वो बेचारा स्टैमर करने लगा, हकलाने लगा और बोला कि क्यों नहीं वो ड्रेस तुम पहन लेती जो हम थिएटर जाते समय तुम पहनते हो ना, वो ड्रेस पहन लो, ये बहुत अच्छी लगती मुझे. He was silent, stupefied in dismay at the sight of his wife weeping. जब उसी समय उसकी वाइफ जो मटिल्डा है वो रोने लगती है, उसको देख करके बेचारा चुप हो जाता है, भौचंका रह जाता है और निराश हो जाता है कि अब करे तो क्या करे. He stammered, वह फिर दोबारा से बोलता है हकलाते हुए, "What is the matter? What is the matter?" By a violent effort she had controlled her vexation and responded in a calm voice, wiping her moist cheeks. "Nothing. Only I have no dress, and consequently I cannot go to this affair. Give your card to some colleague whose wife is better fitted out than I." फिर वॉयलेंट एफर्ट के साथ बड़ी मुश्किल से अपनी वैक्सेशन को, अपनी चिंता को, अपने दुख को कंट्रोल करते हुए उसने बड़ी ही शांत स्वर में जवाब दिया, अपने जो आंसू पोंछते हुए, "नथिंग, कुछ नहीं, मेरे पास ड्रेस नहीं है, और कंसिक्वेंटली कम होता है, इसके परिणाम स्वरूप मैं नहीं जा सकती ऐसी पार्टी में. ये कार्ड किसी अपने कलीग को दे दो जिसकी वाइफ के पास मेरे से अच्छे कपड़े पहनने के लिए हैं." He was grieved but answered, "Let's see, Matilda, how much would a suitable costume cost? Something that would serve for other occasions, something very simple." He was grieved, वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गया, लेकिन फिर भी उसने जवाब दिया, "देखो मटिल्डा, ये सूटेबल कॉस्ट्यूम कितने की आएगी? समथिंग कुछ ऐसी जो कि दूसरे ओकेजन पे भी पहनी जा सके, और कुछ सिंपल सी." She reflected for some seconds, thinking of a sum that she could ask for without bringing with it an immediate refusal and a frightened exclamation from the economical clerk. और फिर उसने कुछ सेकंड सोचा, फिर सोच करके ऐसी अमाउंट सोची उसने जो कि वो पूछ सकती थी, तुरंत बता सके ताकि वो इनकार भी ना कर सके,
और उसको डर भी ना लगे, यानी कि एंड ए फ्राइटन एक्सक्लेमेशन फॉर द इकोनॉमिकल कलर। इकोनॉमिकल होता है कंजूस, ठीक है, जो आर्थिक रूप से इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, ऐसे कलर से बिना डरे जाके उसको डर भी ना लगे और वो मना भी ना कर सके तुरंत। तो ऐसी सम उसने कैलकुलेट की, उसके लिए कुछ सोचा उसने। फाइनली शी सैड इन अ हेजिटेटिंग वॉइस, आखिरकार उसने एक हेजिटेटिंग वॉइस में कहा, हिचकिचाते हुए कहा, आई कैन नॉट टेल एग्जैक्टली, एग्जैक्टली तो मैं नहीं बता सकती, बट इट सीम्स टू मी दैट 400 फ्रैंक्स ought टू कवर इट, कि मुझे लगता है कि 400 फ्रैंक्स में ड्रेस आ जाएगी। He turned a little pale, for he had saved just this sum to buy a gun that he might be able to join some hunting parties the next summer with some friends who went to shoot larks on Sunday. वो थोड़ा सा पीला पड़ गया, यानी कि पीला पड़ने का मतलब थोड़ा डर गया, क्योंकि उसने ये अमाउंट तो गन खरीदने के लिए बचाई हुई थी और इसी से वो नेक्स्ट समर में हंटिंग पार्टीज़ को ज्वाइन करने के लिए गन खरीदना चाहता था और इसीलिए वो पैसे बचा रहा था। विद सम फ्रेंड्स, अपने कुछ दोस्तों के साथ जाने के लिए, जो कि संडे के दिन लार्क्स का शिकार करने के लिए जाया करते थे। नेवरदिलेस ही आंसर्ड, वेरी वेल, आई विल गिव यू 400 फ्रैंक्स बट ट्राई टू हैव ए प्रीटी ड्रेस। ठीक है, फिर भी उसने जवाब दिया, बहुत अच्छी बात है, मैं तुम्हें 400 फ्रैंक्स दूंगा, लेकिन एक अच्छी सी सुंदर सी ड्रेस लाने की कोशिश करना। द डे ऑफ द बॉल अप्रोच्ड एंड मैम लॉइसल seemed sad, disturbed, anxious. Nevertheless, her dress was nearly ready. Her husband said to her one evening, "What is the matter with you? You have acted strangely for 2 or 3 days." फिर भी, और जो बॉल मीन्स होता है डांस पार्टी जो थी, बिल्कुल उसका दिन नज़दीक आ गया। मैम जो लॉयसल थी वो अभी भी उदास थी, डिस्टर्ब परेशान थी, एंशियस चिंतित थी। नेवरदिलेस, फिर भी, हर ड्रेस वॉज नियरली रेडी, हालांकि उसकी जो ड्रेस थी वो करीब करीब तैयार थी। उसके हस्बैंड ने एक शाम उससे कहा, क्या हो गया, क्या बात है, अभी 2-3 दिन से तुम्हारा जो बिहेव है वो बड़ा अजीब हो रहा है। एंड शी रेस्पॉन्डेड, आई एम वैक्स्ड नॉट टू हैव ए jewel, nothing to adorn myself with. I shall have such a poverty-stricken look. I would prefer not to go to this party. तब उसकी वाइफ ने जवाब दिया, मैं परेशान हूँ कि मेरे पास में कोई आभूषण नहीं है पहनने के लिए, अपने आप को सजाने के लिए नहीं है। मैं ऐसे पॉवर्टी स्ट्रिकन लुक का मतलब होता है ऐसी गरीब जैसे दिखने वाली कंडीशन में, हालात में मैं नहीं चाहूँगी कि इस पार्टी में मैं जाऊँ। ही रिप्लाइड, यू कैन वेयर सम नेचुरल फ्लावर्स इन दिस सीजन, दे लुक वेरी चिक। उसके हस्बैंड ने कहा कि तुम कुछ नेचुरल फ्लावर्स पहन लो, इस सीज़न में बहुत सुंदर लगते हैं, प्यारे लगते हैं। शी वॉज नॉट कन्विंस्ड, लेकिन उसे तो कोई सुकून मिला नहीं, सांत्वना उसे मिली नहीं। तो उसने कहा, नो, शी रिप्लाइड, नो, देयर इज़ नथिंग मोर humiliating than to have a shabby air in the midst of rich women. इस प्रकार की, कहता है कि अमीर महिलाओं के बीच में इस प्रकार गरीबी दिखाना, कहता है कि इससे ज़्यादा इंसल्ट की तो कोई बात है ही नहीं। Then her husband cried out, फिर उसका हस्बैंड चिल्लाया, How stupid we are! Go and find your friend Ma'am Forestier and ask her to lend you her jewels. उसके हस्बैंड ने कहा, Then her husband cried out, How stupid we are! Go and find your friend Ma'am Forestier and ask her to lend you her jewels. उसका हस्बैंड जो है चिल्लाता है, अरे हम भी कितनी मूर्ख हैं, जाओ और अपनी फ्रेंड मैम फॉरेस्टियर हैं उसके पास जा कर के उसकी जो ज्वेल्स हैं वो आप उधार ले आओ। She uttered a cry of joy. It's true.
She said, I had not thought of that. I hadn't thought of that. खुशी के मारे उसने एक चीख निकाली। उसने कहा, ये तो सच्ची बात है, ये तो सच्ची बात है। उसने कहा कि मैंने उसके बारे में तो सोचा ही नहीं था। The next day she took herself to her friend's house and related her story of distress. अगले दिन वो अपने फ्रेंड के घर पे जाती है और उससे अपनी सारी बात बताती है, अपनी दुख भरी दास्तान बताती है। मैम फॉरेस्टर went to her closet, took out a large jewel case, brought it, opened it and said, choose my dear. मैम फॉरेस्टर जो है अपनी जो अलमीरा थी वो तिजोरी के पास में जाती है, उसमें से एक जो आभूषण का डिब्बा था वो निकालती है, इसे खोलती है, लेके आती है, इसे खोलती है और कहा कि आप इसमें से कोई भी चुन लो। She saw at first some bracelets, then a collar of pearls, then a Venetian cross of gold and jewels of admirable workmanship. उसने पहले ब्रेसलेट्स देखे, फिर कॉलर ऑफ पर्ल्स देखे, फिर वेनेशियन क्रॉस ऑफ गोल्ड देखा, फिर कुछ उसने बेहतरीन कारीगरी की जो ज्वेल्स थे गोल्ड के वो देखे। She tried the jewels before the glass, hesitated but could neither decide to take them nor leave them. वह उसने ग्लास के सामने सभी को पहन करके देखा, कुछ हेजिटेट करती है लेकिन वो डिसाइड नहीं कर पाई कि उनको वहाँ पर छोड़े या उनको लेके जाए। Then she asked, have you nothing more? फिर उसने पूछा, क्या तुम्हारे पास और भी हैं? Why, yes, look for yourself. I don't know what will please you. हाँ हाँ, यस, क्यों नहीं, आप खुद ही देख लो, मैं नहीं जानती कि तुम्हें क्या अच्छा लगेगा। Suddenly she discovered in a black satin box a superb necklace of diamonds. Her hands trembled as she took it out. She placed it about her throat against her dress and was ecstatic. Then she asked in a hesitating voice full of anxiety, could you lend me this? Only this? Why? Yes, certainly. उसके बाद में क्या हुआ कि उसने अचानक उसने एक ब्लैक सेटिन बॉक्स को देखा और उसको डिस्कवर किया। उसे नज़र आता है उसमें एक डायमंड नेकलेस था, बहुत ही बेहतरीन डायमंड नेकलेस था। उसके हाथ कांप रहे थे जब उसने इसे निकाला। उसने अपने इसे गले के चारों ओर अपने ड्रेस के ऊपर पहन के देखा और जब इसे पहना तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और उसने पूछा हेजिटेटिंग वॉइस के अंदर और फुल ऑफ एंग्जाइटी अपने फ्रेंड से पूछा, क्या ही मुझे उधारा मिल सकता है? केवल यही? हाँ हाँ, निश्चित तौर पर मिल सकता है, कोई बात नहीं, तुम ले जा सकती हो। तो आज हम इस वीडियो में इतना ही करेंगे, जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है विल बी कवर्ड इन सेकेंड वीडियो। आई होप यू आर getting line to line explanation of this story, and if you have any doubts, queries, please send your queries through WhatsApp platform or you can ask me by calling me up. Okay, I am always at your service, there will be no problem at all, I will help you. Okay, and if you like my videos then please share with your friends and subscribe my channel. Thank you, have a nice day.